آپ کے ریٹ اچھے ہونے چاہیے کہ کوالٹی کے اندر آپ کمپرومائز نہ کریں کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی پرچیزر کے ساتھ. اسے فیل کروائیں کہ آپ میرے وہ واحد کسٹمر ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں. وہ کس قسم کا کسٹمر ہے؟ زیادہ بات کرنے والا ہے، کم بات کرنے والا ہے، صرف سلام کے ساتھ بات کرنے والا ہے یا بنا سلام کے بات کرنے والا ہے. شوپر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں 20 روپے کا شوپر آیا کیا، اتنا تو کمایا ہی نہیں ہے. اس 10-15 منٹ میں اس نے 3 کسٹمر سے بدتمیزی کیا. سب سے پہلے آپ اپنے کسٹمر کو عزت دیں. دوسری بات، جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ ساتھ 2 کسٹمر لے کے آئے گا نیکسٹ ٹائم. کب تک نہ چھوڑیں؟ جب تک دوسرا کسٹمر نہ جب تک دوسرا کسٹمر نہ جائے. آپ اس کو اس طریقے سے الجھا کے رکھیں کہ اس کو لگے کہ یہ سارا کا سارا میرے فیور میں. السلام علیکم، مارکیٹ ماسٹر پہ میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. آج کے اس بلاگ میں آپ کے ساتھ جو ہے اچھی باتیں شیئر کی جائیں گی. اور جیسا کہ کافی دکاندار حضرات ایک ویڈیو کو زیادہ لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، جو کہ 3 اسٹار کے ہے جہاں پہ شعیب بھائی آنر ہوتے ہیں. تو آج دوبارہ ان سے جو ہے کچھ سیکھیں گے اور دکاندار حضرات کے لیے، کسٹمرز کے لیے جو فائدے ہوں گے. السلام علیکم شعیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی، جیسے کہ آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس میں آپ نے کافی اچھی باتیں بتائی تھی دکاندار کے جو منافع ہے یا فائدہ ہے اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ انہی کی ریکویسٹ پہ دوسرا پارٹ آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں. اچھا شعیب بھائی، آپ سے سوال ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے کسٹمر پڑھے، بزنس میں منافع ہو، اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو. آج آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا نا ہم سے. آج جو آپ نے سوال پوچھا ہے، آج تک کسی نے اس طریقے کا سوال نہیں پوچھا. کسٹمر پیار کا بھوکا ہے، پہلی نظر اس کے اوپر پیار کی ڈالی. جیسے کسٹمر کہاں سے ہیں سر؟ آپ فرحان ٹاور کے نیچے سے. آپ فرحان ٹاور کے نیچے سے ہیں. تو فرحان ٹاور سے یہاں تک کا ڈسٹینس تقریباً 4 دکانوں کا، 4 کریانہ کی، جس میں میرا نمبر 4 ہے. یہ اتنی دور سے اگر میرے پاس آیا تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. اگر یہ چیز جو مجھ سے طلب کر رہا ہے یہی چیز ان 3 شاپ پر موجود ہے، یہ یہاں آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نمبر 1، کس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں کھینچا ہے یہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے نا. پہلی چیز ہے آپ کا ریٹ، کہ آپ کے ریٹ اچھے ہونے چاہیے. دوسری چیز آپ کی کوالٹی، کہ کوالٹی کے اندر آپ کمپرومائز نہ کریں کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی پرچیزر کے ساتھ. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز، آپ اسے اتنی عزت دیں جتنی اس کو اس کے گھر والے بھی نہ دیتے ہوں، دوست یار نہ دیتے ہوں، رشتے دار نہ دیتے ہوں، اہل و عیال والے نہ دیتے ہوں. آپ اس سے اپنے والد کا سامان سمجھیں. مطلب ایک بڑے کا جو رتبہ ہوتا ہے، بڑے کا جو مقام ہوتا ہے، آپ اس لیول پہ لے جائیں. اسے فیل کروائیں کہ آپ میرے وہ واحد کسٹمر ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں. اور یہی روٹین آپ نے تمام کسٹمر کے ساتھ رکھنی ہے. جتنا کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے، 500 آتا ہے، 1000 آتا ہے، 3000 آتا ہے. اچھا، اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں. چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، درمیانہ ہے یا ایجڈ ہے، تو 70-80 کی ایوریج میں جاتا ہے. اب جب کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے، سب سے پہلے آپ اخلاقاً اسے سلام کریں. وہ آپ سے کہے نہ کہے، وہ آپ سے سلام کرے نہ کرے، آپ اسے انٹری پہ سلام کرتے نا. سلام کرنے کے بعد کسٹمر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. کہ اس کی عمر کم ہے، پر میں اس کو اس لحاظ سے ڈیل نہیں کر رہا ہوں جس طریقے سے اس کی عمر ہے. سمجھ آئے گی؟ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نا. آپ کے پاس کسٹمر آنا ہے، اس کا پیر کس طریقے سے آپ کے پاس انٹر کروانا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی نیچر سمجھنی ہوگی. کسٹمر ان ہوتا ہے، اس کی نیچر آپ کو معلوم ہونی چاہیے. وہ کس قسم کا کسٹمر ہے؟ زیادہ بات کرنے والا ہے، کم بات کرنے والا ہے، صرف سلام کے ساتھ بات کرنے والا ہے یا بنا سلام کے بات کرنے والا ہے. تو جب آپ اس کسٹمر کی نیچر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے اور مثال کے طور پہ آپ سے کہتے ہیں یار 20 روپے کی چیز چاہیے، چھوٹا بچہ ہے، آپ نے 20 روپے کی چیز دی، کہتے ہیں یار شوپر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں 20 روپے کا شوپر آیا کیا، اتنا تو کمایا ہی نہیں ہے. تو یہ اخلاقاً بھی غلط ہے اور بزنس لیول کے حساب سے بھی غلط ہے. جو آپ نے واقعہ پوچھا تھا نا، جی، یہ اس واقعے کے مطابق بتاتا ہوں. جس طرح میں یہاں سے ایک مرتبہ گیا تھا سروے پہ نا، کسی کمپنی کو مجھے لگانا تھا پاکستان میں.
कंपनी का सर्वे चल रहा था, तो सर्वे को मैं खुद कर रहा था। इसी दौरान एक दुकानदार मुझे मिला। ये कितने का? 40 का। इसी दौरान मुझे एक दुकानदार मिला जिसका मैंने नेचर चेक किया ना, वो चेहरे पे शिकन लेके बैठा था। उसका शिकन बकायदा उसकी शॉप से जाहिर हो रहा था कि उसके अंदर अंधेरा कितना था। बोलिए। मिक्स नहीं है? मिक्स खत्म हो गया। मिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा शाही का। अच्छा, उस शख्स से जब मैं मिला हूँ, मैंने उसके पास कस्टमर देखे। मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ मौजूद था। उस 10-15 मिनट में उसने 3 कस्टमर से बदतमीजी की। मतलब मैं तो गैर इंसान था और मेरा कोई काम भी नहीं बनता है कि मैं उसको जज करूँ या मैं उसको बताऊँ। पर जाते जाते मैंने उससे चंद बातें कही ना। चंद बातें क्या कही? मैंने उनसे कहा कि यार सबसे पहले आप अपने कस्टमर को इज्जत दें, इखलाकन। शरीयत भी इस चीज़ की आपको परमिशन देती है कि आप उसे इज्जत दें, क्योंकि वो आपके साथ बिजनेस कर रहा है। आपके बच्चों का बिजनेस उसके थ्रू आ रहा है आपके पास। दूसरी बात, जब आप उसको इज्जत देंगे तो वो 7-2 कस्टमर लेके आएगा नेक्स्ट टाइम। यार दुकानदार अच्छा है, इखलाक अच्छा है, इससे बात करने में मज़ा आता है। आप उससे हाले वाल लें, आप उससे बात करें। जब तक आप उसको ना छोड़ें, जब तक आपके पास दूसरा कस्टमर ना आ जाए। कब तक ना छोड़ें? जब तक दूसरा कस्टमर ना जब तक दूसरा कस्टमर ना जाए। आप उसको इस तरीके से उलझा के रखेंगे, उसको लगे कि ये सारा का सारा मेरे फेवर में। आप उससे आले वाल लेंगे, वो आपको बताएगा घर में परेशानी है, बिजनेस में परेशानी है। वक्त के साथ साथ वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, और फ्रेंड ही बिजनेस का पार्टनर है। कस्टमर फ्रेंड बनता है तो वो आपका पार्टनर बन जाता है, और पार्टनर हमेशा साथ रहता है ना। जिस तरह आपकी वाइफ है, आपकी वालदा है, आपकी बहन है, आपका भाई है। अब मुझे 12 से 14 साल हो जाएंगे कराची में। इन 14 साल पे अगर हम मतलब नज़र डालते हैं तो 14 साल पहले जो मेरा कस्टमर था वो आज भी मेरा ही कस्टमर है। ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास से छोड़ के किसी और के पास गया हो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि वो 14 साल पुराना कस्टमर इलाका छोड़ के गया हो, फिर 6 महीने बाद गुलिस्तान जो राशिद मिनाज आया, और वो मेरे पास लाजमी आता सलाम करने के लिए कि यार शोएब भाई यहाँ से गुजर रहा था मेरे को। ये मेरी कामयाबी है, वजह इसलिए कि मैं इसको गलत समझूं कि वो अपने नफ़े के लिए आया है, या लालच के थ्रू आया है, या किसी और मकसद से दिमाग लगा के आया। अगर वो कस्टमर लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो यहाँ से जाते हुए गाड़ी रोकता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए नीचे से उतरता है, मेरे पास आता है, तो मतलब उसने मेरे लिए वक्त निकाला। और किसी के लिए किसी का वक्त निकालना सबसे कीमती चीज़ है, जिस सरमाए का रिटर्न नहीं है। क्या नहीं है? रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है, मतलब इस सरमाए का आप रिटर्न नहीं करता। पैसा रिटर्न कर सकते हो, दौलत रिटर्न कर सकते हो, ETC अशिया जो है वो आप रिटर्न कर सकते हो। कैसे बेटा? कैसे आप? भाई को बता देना वो दुकान खुल गई है, उसने मेडिकल स्टोर खुला है। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार कोई शॉप हो तो बताना। उनको बताना जो शटर आप बंद देख रहे थे काफ़ी टाइम से, वो शटर खुल चुका है, उसने मेडिकल स्टोर खुला है। ठीक है, ये नॉलेज मेरे पास है, तो मतलब इसका कि इसकी पूरी फैमिली से मेरा रिलेशन है। आप समझ रहे? जी। मतलब बेटे से, बाप से, भाई से, माँ से, बहन से, इसकी भावज से, मतलब हर शख्स से मैं रिलेशन बनाता हूँ, तो मेरी कामयाबी। अब ये शख्स दूर दराज से भी आते सीधे मेरे पास आई। मैं महंगा दूँ, सस्ता दूँ, कम कीमत में दूँ, ज़्यादा कीमत में दूँ, शॉपर में डाल के दूँ, बिना शॉपर के दूँ, ये सीधा मेरे पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने उनको ज़बान से अपने अंदर किया। किस चीज़ से? ज़बान से। ज़बान से। अच्छा, उस शख्स से जब मेरी बात चल रही थी तो मैंने उससे कहा यार इसका सामान निकलवा देना। उस शख्स से मैंने कहा कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर को इज्जत दें। एक काम करें, जब आप उसे इज्जत देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा। तो उसने मेरा शक्ल ऐसे करके गुस्से से देखा। मैं कहा मुझे भी गुस्से से देख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं किसी लालच से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं खुद आप जैसा करियाना स्टोर चलाता हूँ, तो आप गुस्से से ना देखें, मेरी बात सुने, समझें।
दिमाग में बैठती है तो हमारे कह रहे नहीं बैठती है तो आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा, आप 60 साल के, मैं 40 का हूँ, फ़र्क है 20 साल का ना। आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपने मुझसे ज़्यादा नुकसान उठाया, आपने मुझसे ज़्यादा नफ़ा भी लिया होगा, आप रिश्तों को भी मुझसे ज़्यादा समझते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। बोला आपसे कस्टमर ने शॉपर मांगा, आपने क्या किया? शॉपर नहीं है, ऐसा कहा। बोले यार 60 रुपये का उसने साशे लिया शान मसाले का और शॉपर मांगता है। बोला 60 का मसाले का साशे लिया उसने, आपने उसका अगर शॉपर दिया तो वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम कहाँ जाता है? तो यार मुझे इज्जत देता है, मुझे शॉपर देता है, शॉपर के साथ मुझे इज्जत से रवाना करता है, आले वाले भी करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके पास आया। पहली चीज़ से नोट कर लो, आज आपने उसको मना किया है, आप ही की लाइन के अंदर 4 दुकानें और खुली, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके पास आएगा? नहीं। छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो आपके पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उसको बदअखलाकी कर, आपने उसके साथ बदअखलाकी की। जब आपने बदअखलाकी की तो वो आपके पास रिटर्न नहीं। अब वो आपके पास जब आएगा, जब वो चीज़ यहाँ पूरी लाइन में नहीं मिल रही होगी तो मजबूरन वो आपके पास आएगा। अगर वो मजबूरन आपके पास आता है और फिर आप उसको इज्जत दे देते तो वो लाइफ टाइम आपका कस्टमर बनने को तैयार है। और नेक्स्ट टाइम भी आपने उसके साथ बदतमीजी की, ये रवैया रखा, ये अमल पेश किया, वो रिटर्न में आपके पास चाहे सामान मिले ना मिले वो आपके पास नहीं आया तो 4 मील दूर चला जाएगा कि नहीं, इज्जत के साथ बिजनेस नहीं करना। दूसरी चीज शरीयत आपको कहती है कि आप इज्जत दें, मुसलमान होने के नाते आप सामने वाले शख्स को इज्जत दें कि वो आपके घर चल के आए। क्या चल के आए? आपके दरवाजे पे आए, आपकी रोजी आपके दरवाजे पे चल के आ रही है। आपने रेडी नहीं लगाई, आप मुंह से आवाज नहीं लगा रहे हो कि आटा ले लो, चीनी ले लो, घी ले लो, पत्ती ले लो, ऐसी कोई आवाज आप नहीं लगा रहे। आपने शटर खोला, सामान पूरा किया, आप बैठ गए। अब जब तक आप इज्जत नहीं दोगे, फरिश्ते आपकी दुकान पे इंसानों को नहीं लेके आएंगे। आपका इज्जत देना मस्ट है, ठीक है? तो उस शख्स की बात दिमाग में बैठी, बोला यार ये बात तो मेरे समझ में नहीं है। मतलब आप अपनी दुकान पे नजर मारे ना, सबसे पहले आपने नजर मार ली। अब आप बताएं आप जिंदों में शामिल हैं या मुर्दों में शामिल हैं, आप खुद फैसला करें, मुझे छोड़ दें। उसने से देखा दुकान को, तो मेरी तरफ देख के गर्दन नीचे कर। बोला आपकी उम्र ज्यादा है, एक चीज कस्टमर, दूसरी चीज आपने सफाई का मुकम्मल ख्याल रखना। किस चीज का? सफाई का। सफाई का। आपके पास जाले हैं, मट्टी है, गर्द गुबार है, आप उस चीज को साफ करें। रोजाना नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन पे कर लें। हफ्ते में नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं, आप महीने में 1 दिन पे कर लें। और उसको मेंटेन करें, सफाई को मेंटेन करते हैं, वक्तन फवक्तन उसके साथ काम करते हैं। जब सफाई होगी, चीजें बज़ाहिर नजर आएंगी, साफ सुथरी लगी हुई है, उसका मेंटेन हुआ है, सिस्टम सारा का सारा क्लियर है, तो कस्टमर को लाइक करेगा। अब एक्सपायर भी है वो भी आपको पता चल जाएगा, माउस कट है वो भी आपकी नज़र में आ जाएगा, अगर कोई चीज़ डैमेज है वो भी आपकी नज़र में आ जाएगी। कस्टमर जब आएगा तो आपको मालूम होगा यार मैंने ये चीज़ देनी है, मुझे ये चीज़ नहीं देनी, मुझे चीज़ पास करनी है, मुझे पास नहीं करनी। पास करनी है तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो कस्टमर को चाहिए। अच्छा इसमें क्वालिटी नहीं है जो कस्टमर को नहीं देनी, तो मुझे पता है कंपनी रिटर्न करता है। जब कंपनी रिटर्न करता है तो मुझे क्या जरूरत है अपना कस्टमर खराब करने की? मैं उसको उठा के साइड में रखूँगा, कस्टमर को फ्रेश चीज़ दूंगा, या मैं सिंपल सा आंसर दूंगा ये मेरे पास ये खराब रखा है, आप ये बराबर वाली शॉप से। उस कस्टमर के दिल में आपकी जगह बन जाएगी। ऐसा ही है, जब आपकी जगह बनेगी तो कस्टमर क्या करेगा? अपने बच्चों को भी आपके पास भेजेगा, नहीं यार फलां दुकान पे जाइएगा, वो परफेक्ट चीज़ देता है, भले 2 पैसे ज़्यादा लेता है, और मेरे बच्चों के साथ नाजायज़ नहीं करेगा। समझ गए जी। अब आप जितनी देर से देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या क्लिप तैयार कर रहे हैं अपने लिए, तो आपने देखा होगा मैं फारिग नहीं बैठा। यही खासियत होनी चाहिए आपकी, क्या आप जब तक शटर खोल के बैठे हैं आपका काउंटर खाली ना हो। ठीक है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने बिजनेस में कामयाब हों। अगर आपकी लाइफ में कोई सवाल हो तो आप बाजारिया कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इस भाई से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आप कामयाब नासिर हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अच्छे तरीके से शुएब भाई ने गाइड किया। इसके अलावा कोई आप लोगों का सवाल हो दुकान के हवाले से या फिर स्टॉक के हवाले से, डिस्प्ले के हवाले से, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उसका जो है वीडियो बना के हम लोग आप तक उसका मैसेज पहुंचा देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।